Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, English Brook. Today, we're going to take another topic of class 12th. That is poem number 1, My Mother at 66 by Kamla Das. Now, before we begin, let's talk something about the poetess. The poetess Kamla Das, she was an Indian poet and she was born in Kerala on March 31st, 1934. In the year 2009, she expired on May 31st in Pune, Maharashtra. Her famous work include Alphabet of Lust, Padmavati the Harlot, and she received a number of awards. Some of them are Sahitya Akademi Award, Asan World Prize and Asian Poetry Prize, and she also received Kent Award. And before we move on to the poem, let's just understand a few things about the poem. This poem particularly brings to light the poetess's fear of separation from her mother. That means the theme of the poem is separation. The poetess is under the fear of separation from her mother, and that is when she writes this poem. Second, this poem focuses on the tradition of moving on. Now, moving on means that you have to leave a particular situation and then you have to move on. You cannot get stuck to something. आप एक जगह ठहर कर रुक कर रह नहीं सकते. Just because of कि कुछ हो रहा है, things happen and then you have to move on. आपको आगे बढ़ना पड़ता है. तो ये पोम उस पर भी फोकस करती है कि कैसे पोइट्स अपनी माँ को छोड़कर आगे जाती है, बिकॉज आगे जाना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग, इट ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन यंग एंड द ओल्ड एज. यहाँ पर यंग एंड ओल्ड एज के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट भी ड्रॉ किया गया है कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ी माँ, उसकी क्या फिज़िकल कंडीशन है और दूसरी तरफ पोइट्स की क्या कंडीशन है, उसकी क्या सोच है. एंड यहाँ पर यंग ट्रीज़ और यंग चिल्ड्रन के साथ एक कंपैरिजन भी है जिसके ज़रिए पोइट्स समझाना चाहती है दैट इन टाइम you have to take such steps or decisions wherein you have to move on. आपको आगे बढ़ना पड़ता है. So now let's begin with the poem. It starts with driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Now what is happening? Basically, poetess जो है कमला दास, she is driving from her parents' home. अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचिन की तरफ जा रही है. All right? और this is the last Friday morning. That means पिछला जो शुक्रवार था, पिछला जो फ्राइडे था, उसकी सुबह, when she was coming back from her parents' house and she was driving towards Cochin airport, उन्होंने अपने साथ अपने बगल में बैठी हुई अपनी माँ को देखा. And after she saw her mother, what she felt or what she noticed is in the next line, doze, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But now, what the poetess is saying, when she looked at her mother, जब उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा जो उनके बगल में बैठी थी गाड़ी में, she was dozed off. That means वो सो गई थी. कभी कभी आँख लग जाती है हमारी because of tiredness, because of illness. तो उनकी माँ में अभी उतनी एनर्जी नहीं है because she is old. As the title says, she is 66. तो उनकी उम्र काफ़ी है और वो कार में बैठे बैठे सो गई हैं. और ओपन माउथ, उनका जो मुंह है वो खुला है. दैट मीन्स मुंह खुला रख के वो सोई हुई हैं और उनका जो चेहरा है वो एशन लाइक है. नाउ एशन मीन्स व्हाट? एशन बेसिकली मीन्स पेल ड्यू टू एज और इलनेस. या तो पीला पड़ गया है उनका चेहरा, वो या तो उम्र की वजह से है या बीमारी की वजह से है. यहाँ दोनों फैक्टर्स हैं बिकॉज 66 हैं और 66 की उम्र भी काफ़ी होती है, प्लस वो शायद थोड़ी बीमार भी हैं. वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कॉर्प्स यानी किसी डेड बॉडी का चेहरा हो जिसमें रंगत बिल्कुल उड़ गई है, उनका रंग बिल्कुल उड़ गया है, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है, जैसे उसमें अब कोई वाइटैलिटी, कोई एनर्जी नहीं बची है. एंड शी सेज दैट विद पेन
and realized with pain that she was as old as she looked. और ये महसूस हुआ पोइटस को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, कि अब मेरी माँ वाकई बूढ़ी हो गई हैं और जितनी बूढ़ी वो दिखती हैं शायद उतनी बूढ़ी वो हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि उम्र तो है लेकिन अभी भी शरीर में कुछ वाइटलिटी, कुछ एनर्जी बाकी है। उम्र तो हो गई है साथ साथ, लेकिन एक्चुअली उनका शरीर भी जो ढल गया है, अब उनमें उतनी एनर्जी अभी बाकी नहीं है। But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. अब यहाँ पर वो मूविंग ऑन वाली थॉट प्रोसेस आती है दैट शी अवॉइड्स। वो देख रही है पूरे दुख के साथ कि उनकी मदर की क्या कंडीशन है, एंड शी अवॉइड्स लुकिंग एट हर मदर एंड शी स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड। वो अब गाड़ी के, अपनी कार के बाहर देखने लगती हैं, और बाहर जब कार उनकी रास्ते में चल रही है तो शी कुड फील द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंट मीन्स रनिंग, भाग रहे होते हैं। इट्स अ शॉर्ट रेस काइंड ऑफ स्टफ, कि बहुत छोटी सी एक रेस होती है जिसमें तेज़ी से लोग दौड़ते हैं, उसे स्प्रिंट कहते हैं। तो वो स्प्रिंट कर रहे हैं बिकॉज उनकी कार जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और ट्रीज़ पीछे निकलते जा रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है जैसे वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से निकल रहे हैं। and the merry children spilling out of their homes, और बच्चे वहाँ पर अपने घरों से बाहर भागते हुए आ रहे हैं और खेल रहे हैं। यहाँ स्पिलिंग का बेसिकली मतलब होता है बिखरना, लेकिन यहाँ पर स्पिलिंग का मतलब है दे कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो अपने घर से बाहर आ रहे हैं भागते हुए, एंड दे आर मैरी। मैरी मीन्स दे आर वेरी हैप्पी एंड चेयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइटलिटी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक कॉन्ट्रास्ट है कि उनकी कार में एक तरफ उनकी मदर है जहाँ पर देयर इज़ नो वाइटलिटी, देयर इज़ नो एनर्जी बिकॉज शी इज़ डोज्ड ऑफ। वो नींद में है, सो गई हैं, और उनका चेहरा ऐसा हो गया है जैसे किसी डेड बॉडी का, बिल्कुल जिसको बोलते हैं निर्जीव, एकदम उसमें कोई प्राण नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, एकदम लाइफलेस सा हो गया है, बिल्कुल कलरलेस हो गया है। और दूसरी तरफ गाड़ी के बाहर यंग ट्रीज़ हैं। यंग ट्रीज़ मीन्स बिल्कुल एकदम हरे भरे पेड़, और बच्चे जो विच आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइवलीनेस, फुल ऑफ चेयर। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ ड्रॉ हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। But after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old. Then she says that, after she crossed that road, she crossed all the trees and the children she looked at, and then she reached the security check of the airport. अब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई हैं, सिक्योरिटी चेक हो रहा है उनका, जहाँ कुछ दूरी पर उनकी माँ खड़ी हैं और ये पलट के अपनी माँ को देखती हैं। वैन पेल, नाउ वैन अगैन मीन्स पेल इटसेल्फ, कमज़ोर, कलरलेस। वैन का मतलब भी पेल ही होता है, वीकनेस, कलर वीक है, कलरलेस है। तो उनकी माँ जो है उनकी तरफ फिर से देखती है, वो बड़ी बीमार, कलरलेस लग रही हैं, बहुत कमज़ोर लग रही हैं, जैसे कि लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून मीन्स मून एक्चुअली इज़ अ सिंबल ऑफ वाइटलिटी, बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन जब वही मून विंटर में आ जाता है, सर्दियों में, तो धुंध से घिर जाता है और उसकी जो एक्चुअल चमक है वो उस धुंध में कहीं छुप जाती है, उस ठंड में कहीं छुप जाती है। तो ऐसे ही ओल्ड एज में इनकी मदर की वाइटलिटी, उनकी एनर्जी कहीं छुप गई है। इसलिए यहाँ पर कंपेयर किया पोइटस ने अपनी मदर को लेट विंटर्स मून से, कि उनकी भी वाइटलिटी, उनकी जो चमक है, उनकी जो शाइन है, उनका जो ग्लो है, वो उनकी बूढ़ी उम्र में, उनकी इलनेस में और उनकी उम्र में वो कहीं छुप गया है, जैसे कि ठंड में मून जो है, चांद जो है, उसकी चांदनी छुप जाती है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache by childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. आगे she says familiar ache. Ache means दर्द, कोई दुख, कोई परेशानी। फेमिलियर क्यों कहा उसने उस दर्द को, उस दुख को? क्योंकि वो शायद पहले भी महसूस कर चुकी हैं। और वो कब महसूस किया उन्होंने? माई चाइल्डहुड्स फियर, बचपन में आपको पता होगा कि जब बच्चे से माँ दूर जाती है तो बच्चा बहुत रोता है, उसे बड़ा डर लगता है, बहुत दुखी होता है वो कि मेरी माँ मुझसे दूर हो रही है। तो वही सेम दर्द, वही सेम तकलीफ़, वही सेम दुख यहाँ पर पोइटिस को फिर से महसूस हुआ
दैट्स वाई द पोएटेस सेड फेमिलियर एक, वो जानी पहचाना सा दुख जो है, जाना पहचाना दुख वापस आ गया जो मेरे बचपन में था. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन इन सब के बावजूद मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अम्मा जल्दी ही मिलेंगे दोबारा. यानी कि वो फिर से अपनी माँ को ये एक होप दे रही है कि हम जल्दी से दोबारा मिलेंगे, और शायद खुद को भी वो होप दे रही है. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. नाउ हियर पोएटिस हैज़ यूज्ड द वर्ड स्माइल 3 times. अब यहाँ पर 3 बार स्माइल को यूज़ करने की, रेपिटेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो यहाँ पर इफ़ वी अंडरस्टैंड बिटवीन एंड बियॉन्ड द लाइन्स, देन वी कैन से दैट पोएटिस इज़ ट्राइंग टू हाइड हर गिल्ट. गिल्ट कौन सी उसको एक गिल्ट है, वो ये कि वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही है, उसे जाना पड़ रहा है बिकॉज शी हैज़ टू मूव ऑन इन लाइफ. दूसरा, शी वॉन्ट्स टू हाइड हर फियर. अब डर क्या है? डर ये है कि उसकी माँ की जो तबीयत है वो बहुत ख़राब है, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और वो ये नहीं जानती कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी माँ से मिल भी पाएगी या नहीं, बिकॉज देयर मे बी अ चांस, ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनकी माँ की डेथ हो जाए इससे पहले कि पोएटिस दोबारा उनसे मिल पाए. एंड थर्ड, शी स्माइल्स. दिस स्माइल इज़ लाइक अ प्रॉमिस. एक उम्मीद है, एक होप है कि शायद वो दोबारा अपनी माँ से मिलेगी. उस उम्मीद को जताते हुए वो तीसरी बार स्माइल बोलती है, तक लिखती है ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. सो यहाँ पर 3 बार स्माइल करने का ये मतलब है. नाउ लेट्स कम टू दी पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम. सबसे पहले इट्स द सिमिली. यहाँ पर फेस एशन लाइक कॉर्प्स. जहाँ पर लाइक का इस्तेमाल होता है उस वहाँ सिमिली हो जाता है, इफ़ यू नो इट. यहाँ पर फेस एशन लाइक कॉर्प्स, जो उनका चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है. कैसे? वैसे चेहरे की तरह जैसे किसी डेड बॉडी का चेहरा होता है, राइट. तो यहाँ पर लाइक यूज़ किया गया, वहाँ सिमिली हुआ. नेक्स्ट, एज अ लेट विंटर्स मून. एज अ लेट विंटर्स मून. यहाँ पर फिर से एक बात आ गई कि कैसा उनकी माँ का जो चेहरा है, उनकी माँ की जो कंडीशन है वो कैसी है? लेट विंटर्स मून जैसी है, कि जो अपनी ग्लो जो है वो उसका ढक चुका है. किस में? ठंड में, धुंध में. ऐसे ही इनकी माँ का जो ग्लो है वो छिप गया है ओल्ड एज में. नेक्स्ट है मेटाफर. अब यहाँ पर चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे जो हैं वो भाग रहे हैं घर से बाहर. दिस इज़ अ मेटाफर हियर. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. ट्रीज स्प्रिंटिंग. ट्रीज स्प्रिंटिंग कैसे? ट्रीज़ जो है, वैसे वी ऑल नो कि ट्रीज़ जो होते हैं वो एक ही जगह पे टिके रहते हैं, भागते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर उनको पर्सोनिफाई किया गया जैसे कि वो स्प्रिंट कर रहे हों, दौड़ रहे हों, कोई दौड़ लगा रहे हों, क्योंकि जो कार है वो आगे की तरफ जा रही है और ट्रीज़ पीछे निकलते जा रहे हैं. तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रीज़ भाग रहे हों. नेक्स्ट इज़ इमेजरी. यहाँ पर पोइटिस ने इमेजरी क्रिएट किया है, दैट इमेज ऑफ यंग ट्रीज़. शी इज़ ट्राई टू पोर्ट्रे अ पिक्चर दैट ट्रीज़ आर यंग, राइट. जो पेड़ हैं वो बड़े हरे भरे, दे यंग, फुल ऑफ एनर्जी हैं. एंड द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, और बच्चे बहुत खुश हैं. तो वो एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की हुई यंग ट्रीज़ और मैरी चिल्ड्रन की, कि बच्चे बड़े खुश बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. एंड देन आज जो हमने पहले भी डिस्कस किया, रेपिटेशन है. स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, द सेम वर्ड हैज़ बिन रिपीटेड 3 times. तो यहाँ रेपिटेशन है. Now let's come to the important questions that may be asked in the paper. क्या है पहला important question? Why did the narrator compare her mother's face to the late winter's moon? Narrator ने अपनी मदर के चेहरे को late winter's moon से क्यों compare किया? अभी as we discussed earlier, उन्होंने compare इसलिए किया because जैसे winters के अंदर moon की जो रोशनी है, जो चांदनी है, वो धुंधली पड़ जाती है because of the fog, या ठंड की वजह से. और इसी तरह उनकी माँ की जो ग्लो है, जो उनकी माँ की जो एनर्जी है, वो सब अब वीक पड़ गई है, वाइटैलिटी उनकी कम हो गई है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज. यहाँ पर ओल्ड एज इज़ लाइक दैट धुंध, ठीक है, वो फॉग जैसा है जिसने उनको, उनकी एनर्जी को, उनकी वाइटैलिटी को ढक लिया है. एंड नाउ शी इज़ लुकिंग लाइक अ लेट विंटर्स मून. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फेमिलियर एक मेंशन्ड इन दीज लाइन्स? अब फेमिलियर एक की भी बात हमने की. फेमिलियर एक मीन्स वो जानी पहचानी जो तकलीफ़ थी उनकी, बिकॉज शी हैज़ एक्सपीरियंस द सेम ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड. जब बचपन में किसी बच्चे को माँ से दूर जाने का जो डर होता है, वो डर आज यहाँ पर फिर से उन्हें फील हुआ दैट यू नो दैट इट मे बी
कि जब वो नेक्स्ट टाइम वापस आएँ तब तक शायद उनकी माँ ना रहें, उनकी माँ की शायद डेथ हो जाए। तो वो डर एक फेमिलियर डर है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द नैरेटर से सी यू सून अम्मा। अब नैरेटर ने सी यू सून अम्मा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कीप दैट होप अलाइव। वो उस उम्मीद को ज़िंदा रखना चाहती हैं अपने लिए भी और अपनी माँ के लिए भी कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम देयर विद ग्रीफ। वो दुख के साथ नहीं जाना चाहती बल्कि एक उम्मीद के साथ जाना चाहती हैं और एक उम्मीद अपनी मदर के पास छोड़ कर जाना चाहती हैं दैट they will soon meet again, they will meet again very soon, okay? And the last and the fourth question is why did the narrator smile and smile? So narrator हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है? आज हमने पहले भी डिस्कस किया, she is smiling because she wants to first hide her guilt, second hide her fear, and third she wants to keep the hope alive that she will surely meet her mother again. ठीक है, वो अपना डर छुपाना चाहती हैं, अपना गिल्ट छुपाना चाहती हैं और वो एक उम्मीद बनाए रखना चाहती हैं कि वो जल्दी ही अपनी मदर से फिर मिलेंगी। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आ गई होगी एंड ऑल द पोएटिक डिवाइसेस एंड आंसर्स एज वेल। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो please make sure you subscribe to my channel and share the video with your friends, and do not forget to press the bell icon so that आपको notifications time to time मिलते रहें न्यू वीडियोज़ के। Thank you so much, all the best,